ہمیں کچھ خاص بتائے گا. کچھ ایسی باتیں ہوں گی میں بھی ہم نے کبھی وہ سوچی بھی نہ ہوں، اور اس کا میں آپ کے ساتھ ایک ٹیسٹ لوں گا اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خدا کے کلام کو کتنا جانتے ہیں. تو جب آپ یسوع مسیح کو غور سے سنیے گا، سب کے لیے یہ کویسچن ہے کہ جب ہم یسوع مسیح کو صلیب پر کیلوں سے جڑا ہوا دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جو سوال آتا ہے، جو خیال آتا ہے، وہ کیا ہے؟ آپ کچھ لمحوں کے لیے یسوع مسیح کو صلیب کو دیکھیے اور غور کریے کہ آپ کے ذہن میں کیا خیال بن رہا ہے. اگر آپ یسوع مسیح کو کیلوں پر جڑا ہوا دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ویل مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے، تو پھر آپ نادان ہیں، پھر آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر آج یہ بیج جو کلام کا ہے وہ آپ کے اندر اگے گا اور وہ پھل لے کر آئے گا. اس کو ریسیو کریے. آج کے پیغام کے لیے اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے دل کو کھول لیجئے، کیونکہ آج کا کلام آپ کی آنکھوں سے ایک پردہ ہٹا دے گا. اگر یسوع صلیب پر کیلوں سے جڑا ہوا آپ کو لگتا ہے اور کوئی خیال نہیں نظر آتا، کوئی ذہن میں بات نہیں آتی، تو پھر آپ کلام سے بالکل واقف نہیں ہیں اور آپ کو کلام کو سیکھنے کی ضرورت ہے. ہاللیلویا. لیکن اگر آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ بندہ جو صلیب پر کیلوں سے جڑا ہوا ہے وہ خود تو اپنے آپ کو بچا نہیں پایا، تو وہ جب یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں بچانے کے لیے آیا ہوں، وہ مجھے خاک بچائے گا؟ اس نے خود تو اپنے آپ کو بچایا نہیں، وہ مجھے کیا بچائے گا؟ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں تو آپ سچائی سے بالکل واقف نہیں ہیں، اور یہ خیال شیطان نے آپ کے دل میں ڈال دیا ہے. لیکن اگر آپ اس کے علاوہ کچھ سوچ رہے ہیں تو پھر خدا کا کلام کہیں نہ کہیں آپ کے اندر کام کر رہا ہے. کیا ذہن میں آتا ہے؟ اگر آپ کے ذہن میں آ رہا ہے یسوع مسیح کے حوالے سے کوئی خیال، تو آپ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے کہ کیا ذہن میں آتا ہے جب آپ یسوع کو صلیب پر کیلوں سے جڑا دیکھتے ہیں. یسوع مسیح کی قربانی کس کے لیے؟ میرے لیے، ہمارے لیے یسوع مسیح کی قربانی. واو. کوئی اور خیال؟ وسیلہ بنا ہے وہ. اس کے صلیب پر چڑھائے جانے سے آج میں بچایا گیا ہوں. پریز دی لارڈ. مجھے مکتی مل چکی ہے. کوئی اور خیال جو آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ یسوع مسیح کو کیلوں سے جڑا ہوا دیکھتے ہوئے آج ہم 7 خیالات اپنے ذہن میں لائیں گے تاکہ کسی بھی شخص کو یہ جرت نہ ہو یہ کہنے کی کہ تیرا مسیح خود تو وہ اپنی جان بچا نہیں سکا، وہ ہمیں اور جہان کو کیا بچائے گا. 7 خیالات ہم سیکھیں گے، اور جس نے آج یہ کلام اپنے دل میں رکھ لیا، سمجھیں وہ تر گیا، زندگی بن جائے گی. جی بھائی. ہاں، پرمیشور نے اس سمے کو پورا کرنا تھا. پرمیشور نے ایک پلان رکھا ہے ہماری نجات کے لیے، ہماری مکتی کے لیے، اور پربھو یسوع اس پلان کو، اس منصوبے کو جو نبیوں کی کتابوں، توریت، زبور اور نبیوں کی نبوتوں میں، صحیفوں میں جو یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہوا تھا، وہ اس کو پورا کرنے کے لیے
वो सलीब पर है। उसका सलीब पर चढ़ना ऐमे नहीं है, एक एक्सीडेंट नहीं है कि एक चंगे भले अच्छे इंसान को जो मौत से दिखाता था उसको उन्होंने पकड़ के सलीब पर चढ़ा दिया। ये ऐसा नहीं है, बल्कि मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह का सलीब पर जान देना, उसका सलीब पर जड़े जाना एक भरपूर खुदा का, एक निजात का, छुटकारे का, मुक्ति का एक मंसूबा था जो कलामे मुकद्दस में पुराने नेम के अंदर वाज़े तौर पर लिखा हुआ था। तो सबसे पहला जो पॉइंट, बल्कि आप इनको लिख सकते हैं, वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह को जब हम सलीब पर देखते हैं तो ये कलामे मुकद्दस को पूरा करना था। खुदा के कलाम में जो नबूवतें खुदावंद यीशु मसीह के बारे में की गई थी वो पूरी हुई। आपको पता है, जब यीशु मसीह को पकड़वाने वाला कौन था? यहूदा था। तो यहूदा के बारे में यीशु मसीह ने कहा कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। लेकिन खुदा में यीशु मसीह कहता है कि इब्ने आदम के हक में, मेरे हक में तो जो लिखा था वो पूरा होना ही था, लेकिन अफसोस उस आदमी के जिसकी वजह से मैं पकड़वाया जा रहा हूं। उसके लिए अच्छा होता कि वो पैदा ही ना होता। मेरे अजीजों, ये बहुत बड़ी बात है, इसमें बड़ा राज है। अगर आप इस दुनिया में पैदा हुए हैं और यीशु मसीह की सलीब को ना समझ सके, याद रखें, सलीब को सिर्फ पहनना जरूरी नहीं, सलीब को जानना जरूरी है। हालेलुया। सलीब को पहनना जरूरी नहीं है, सलीब को जानना जरूरी है। और अगर कोई बंदा यीशु की सलीब को जाने बगैर मर जाता है तो ऐसे आदमी के लिए हम कहेंगे, उस आदमी के लिए अच्छा होता कि अगर वो पैदा ही ना होता, क्योंकि वो मरने के बाद खुदा के पास नहीं जाएगा, क्योंकि उसने खुदावंद को जाना नहीं, उससे प्रेम नहीं किया, लेकिन उसका ठिकाना कहीं और होगा। तो इसलिए जरूरी है कि यीशु मसीह सलीब पर अपनी जान देते, क्योंकि उनके हक में यही लिखा गया था। मैं चाहता हूं आप पढ़ें लूका की अंजील 24 बाब, उसकी 25वीं आयत से 27वीं आयत तक आपने पढ़ना है। लूका 24 25वीं आयत से 27वीं आयत। अब मैं आपको ये एक दूसरी कहानी सिखाता हूं। यीशु के शागिर्द जो रोज यीशु के साथ होते थे, यीशु ने सिखाता था, यीशु ने बताता था कि किस तरह मैं मरूंगा, किस तरह मैं जी उठूंगा, लेकिन वो बातें उनके दिमाग से, जैसे हम में से भी जब हम होते हैं तो बातें हमारे ऊपर से निकल जाती हैं। अभी भाई निकल जाती हैं ना ऊपर से बातें, तो इसी तरह यीशु के शागिर्दों के जहन से भी बातें ऊपर से निकल जाती थीं। और यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे तो क्या कहा था उसने औरतों को कि मैं गलील को जाता हूं और तुम मेरे भाइयों को कहो कि गलील में चले जाएं, वहां मैं उनको मिलूंगा। और जैसे ही यीशु मसीह गलील को जा रहे थे तो दो शागिर्द उन्हें वहां पर मिल गए और यीशु ने ऐसे ही उनसे कहा कि क्या हुआ है ये। उनसे पूछा किधर जा रहे हो, उन्होंने कहा गलील को। यीशु ने कहा क्या हुआ है यहाँ पे, तो उन्होंने कहा तुम्हें नहीं पता क्या हुआ, एक मसीहा हमारा खुदावंद आया था, मसीहा आया था जिसके लिए वादा था कि वो हमें बचा लेगा, लेकिन अफसोस कि अब वो मारा गया है। और यीशु मसीह ने कहा कि अफसोस तुम्हारे ऊपर कि तुम इस बात को, इस राज को समझ ही नहीं पाए। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी आंखों को खोला और हम उस हवाले को देखते हैं। लूका अध्याय 24 ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ 25 ਤੇ 26 ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਬੇਸਮਝੋ ਔਰ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲਿਓ, ਕਿ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇ।
ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਅਰ ਸਭਨਾ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭਨਾ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। आमीन। तो यीशु मसीह ने यहाँ अपने ये दोनों शागिर्दों को बताया, जाते जाते ही बताया कि क्या यहाँ पर ये नहीं लिखा था, क्या लिखा था? यशाया 50:6 में कहता है कि मैंने अपनी पीठ कूटने वालों के और अपनी दाढ़ी नोचने वालों के हवाले की, मैंने अपना मुंह रुसवाई और थूक से नहीं छुपाया। यशाया 700 साल पहले यीशु मसीह के बारे में जो कुछ उसके साथ हुआ वो सब कुछ बता रहा है। तो खुदाम यीशु मसीह ने कहा यशाया की पुस्तक देखो, ये जरूरी नहीं था कि जो यीशु के साथ हुआ, जो मसीहा के साथ हुआ वो होना जरूरी था। और यीशु ने उन्हें अपने आप बताया नहीं, अभी अपना जाहिर नहीं किया अपना आप उन पर। उनको लग रहा था ये भी कोई मुसाफिर ही है जो हमारे साथ चल रहा था। तो उनको अकल आई कि हाँ यार, यीशु मसीह का मार खाना, कोड़े खाना ये कलाम के मुताबिक था। फिर उसने उन्हें ये भी कहा निकालो मेरे साथ ज़बूर 22 बाब निकालो। तो उन्होंने जब ज़बूर 22 बाब निकाला और उसकी पहली आयत देखी तो हम क्या पढ़ते हैं उसमें? हे मेरे परमेश्वर तैं मैनू छੱਡ ਦਿੱਤਾ है, तैं मैनू क्यों छੱਡ ਦਿੱਤਾ है। आमीन। तो अब 18वीं आयत को भी हम देखेंगे। यही बात जब हमने 7 कलमे देखे थे तो यीशु मसीह ने क्या कहा था? ये कलमा किसने पढ़ा था? ऐ बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? किसने पढ़ा था आप में से? पास्टर जी ने, पास्टर सिल्वेस्टर ने ये कलमा, चौथा कलमा था। और वहां पर यीशु मसीह ने कहा एली एली लमा शबक्तनी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तो ये लिखा हुआ तो उनको याद आया, हाँ हमारे प्रभु ने तो यही अल्फाज कहे थे। और फिर 18वीं आयत में क्या था? ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਿਬਾਸ ਉੱਤੇ ਗੁਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। हाँ, और ये बात भी कि उन्होंने यीशु मसीह के जो मसीहा आएगा उसके कपड़े वो बांट लेंगे और उस पर कुरा डालेंगे। और ये भी लिखा था कि जब मैं सलीब पर वो प्यासा होगा और वो पानी मांगेगा तो वो उसे सिरका पिलाएंगे। और मेरे अजीजों, ये सारी बातें यीशु मसीह इसीलिए सलीब पर थे। आप बता सकते हैं ऐसे लोगों को कि वो इसलिए सलीब पर थे क्योंकि खुदा के कलाम में उसके बारे में लिखा हुआ था, वो पूरा होना जरूरी था। और अगर कोई बात कोई नबी प्रोफेसी करे तो और वो पूरी ना हो तो इसका मतलब क्या है? कि वो प्रोफेसी झूठी थी। लेकिन जो कुछ कहा गया वो पूरा हुआ, और तो इसका मतलब क्या हुआ? कि वो प्रोफेसी सच्ची है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, नंबर 2, दूसरा पॉइंट हम देखते हैं और वो है कि उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया था, यानी उसने हमारा कफारा दिया है। कफारे का मतलब पता है क्या है? इब्रानी जुबान में ये कफार से निकला है, और कफार का मतलब है कि किसी चीज को ढांक लेना, ऐसे ऊपर आ जाना, किसी चीज को ढांक लेना। समझो कि पापों की वजह से हमको कोड़े पड़ने वाले हैं और हमारे ऊपर यीशु आ जाता है और वो खुद कोड़े हमारे लिए खा लेता है। तो ये है कवर कर लेना। आज जब मैं इस्राएल को देखता हूं ना तो आते हैं मजाइल, आते हैं कोड़े, समझो आते हैं बहुत, लेकिन क्या है? एक कवरेज खुदा ने उनको दे दी हुई है। जिस तरह एक मुर्गी अपने परों से अपने बच्चों को छुपा लेती है, आज भी यरूशलेम खुदामंद के कवरिंग से वो छुपाया हुआ है। हालेलुया। ये बातें सोचने और समझने वाली हैं मेरे अजीजों। आज इस सलीब पर मैं
और आप होते, गुनाहों की वजह से होते, लेकिन वो मेरी और आपकी सलीब उठाए, वो सलीब पर चढ़ गया है। तो जो ये कहता है ना कि जो खुद बचा नहीं सका वो मुझे क्या बचाएगा, उसके लिए ये पैगाम है कि आज वो सलीब पर ना होता तो मैं होता, आप होते। इसलिए मेरे अजीजों, उसने हमारी सलीब, हमारे कोड़े उसने खुद खाए। और गुनाह की मजदूरी क्या है? हम सारे पापी हैं, तो गुनाह की मजदूरी क्या है? अभी क्या है गुनाह की मजदूरी? गुनाह की मजदूरी मौत है। गुनाह की मजदूरी मौत है। अगर यीशु सलीब पर अपनी जान ना देता तो वो मौत किसको आनी थी? मुझे आनी थी, आपको आनी थी। और वो मौत ये नहीं है कि बस सा गए तो जान छुट्टी, ऐसा नहीं है। ये अब्दी मौत है जो पाताल के अंदर, जहन्नम के अंदर, जो ना खत्म होने वाली आग है, वो है, वो मौत है जिसको खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर चढ़कर हमारे ऊपर से उसने उतार दिया है। और छठे कलमे में बेला ने क्या कहा था? क्या लफ्ज थे उसमें खास? छठे में तमाम हुआ, ततेलेस्ते, इट इज फिनिश्ड, तमाम हुआ, पूरा हुआ। तो यीशु मसीह ने सलीब पर चढ़कर कहा तमाम हुआ। तुम्हारे गुनाह जो हैं वो चुका दिए गए हैं, हिसाब बराबर हो गया है। अब तुम्हें मरने की और तुम्हें सलीब पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। हम एक हवाला पढ़ेंगे, यशाया 53 बाब, उसकी 4 से 7 आज तक हम पढ़ेंगे। यशाया 53 4 से 7 आयत। अगर किसी ने निकाल लिया तो वो पढ़ सकता है। सचमुच उसने साडे गम चुक लए ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਉਠਾਏ, ਪਰ ਅਸਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝਿਆ। हमने क्या उसे समझा कि उस यीशु ने भी कोई सजा, कुछ पाप तो कीता ही होना है, जिसकी वजह तो वो सलीब पर था। वो कमजोर था इसलिए अपने आप को नहीं बचा सका। लेकिन यहां पर खुदा का कलाम उसे क्या कहता है? क्या कहता है? पढ़िए। पर ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਘਾਇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਘਾਇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤਾੜਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਰੋਏ ਕੀਤੇ गए। हालेलुया। आज जब हम शिफा पा जाते हैं, आज जब खुदा के खादम दुआ करते हैं और मौजज़ात होते हैं, शिफाएं होती हैं, तो इसकी वजह कौन है? वो पास्टर की 6-7 घंटे की प्रार्थनाएं नहीं है, उसका पाक रहना नहीं है, बल्कि क्या है? यीशु का लहू है। उसके वसीला से हम शिफा पाते हैं। आगे, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਦੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲੱਦੀ। ਉਹ ਸਤਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖੋਲਿਆ। ਲੇਲੇ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਲਈ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਭੇਡ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੀ ਉਨ ਕਤਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੂੰਗੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖੋਲਿਆ। ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਕਬਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਧਨੀ ਨਾਲ ਠਹਿਰਾਈ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਛਲ ਸੀ, ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਭਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ। ਜਦ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਬਲੀ ਠਹਿਰਾਵੇਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਲੰਮੇ ਕਰੇਗਾ
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਭਾਉਣੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਧਰਮੀ ਦਾਸ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੁੱਟ ਵੰਡੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਮੌਤ ਲਈ ਡੋਲ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। आमीन। आमीन। तो ये सारी कहानी अगर आप गौर से इसको समझ पाए हैं तो ये सारी कहानी बयान करती है कि यीशु मसीह जो कुछ भी उन्होंने किया हमारी खातिर किया। हालेलुया। नंबर 3, खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर जब हम देखते हैं तो हमें क्या नजर आता है? खुदा बाप की मोहब्बत नजर आती है। क्या नजर आती है? कैसे बाप की मोहब्बत हमें नजर आती है सलीब पर? क्योंकि कलाम में क्या लिखा, अभी भाई ने पढ़ा कि खुदावंद ने दुनिया से, बाप ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। तो मेरे अजीजों, ये खुदा की मोहब्बत थी। हम अपने पाप के कारण मर सकते थे, हम अपने पाप के कारण कोड़े खा सकते थे, हम अपने पाप के कारण आज इब्लीस की कैद में जा सकते थे, लेकिन बाप नहीं चाहता था कि हम ऐसा हमारे साथ हो। तो उसने यीशु मसीह को भेज दिया ताकि वो सारे दुख सह ले और हम लोग बचाए जाएं। तो ये खुदा की मोहब्बत है। पता है मोहब्बत की क्या निशानियां होती हैं? क्या करती है मोहब्बत? मोहब्बत माफ करती है। हालेलुया। इसीलिए यीशु ने सलीब पर कहा, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। मोहब्बत माफ करती है, मोहब्बत ढांक लेती है। आपको पता है बच्चे जब गलती करते हैं तो बाप को कभी कभी पता भी नहीं होता कि बच्चे ने ये गलती या बेटी ने ये गलती की हुई है। माएँ इस बात को बड़ा अच्छे तरीके से समझती हैं। क्यों? क्योंकि वो ढांक लेती हैं, मोहब्बत ढांक लेती है। और यीशु मसीह ने ढांक लिया है अपने लहू से हमें। वो हमारा बाप भी है और वो हमारी माँ भी है, उसमें सारे रिश्ते पाए जाते हैं। वो हमारा भाई भी है, और आपको पता है भाई भाइयों के लिए जान भी दे देते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने भाई का रिश्ता भी अदा किया है और उसने हमारी खातिर अपनी जान दे दी है। ये मोहब्बत का बहुत बड़ा असूल है। और सबसे मोहब्बत पता क्या है? उसने अपने दुश्मनों के लिए भी अपनी जान दी है। देखें, एक दूसरे के लिए, अच्छे इंसानों के लिए सब लोग जान देते हैं, लेकिन कोई दुश्मन के लिए जान देता है? यीशु मसीह ने वो काम किया है, दुश्मनों के लिए भी अपनी जान दी है। इसलिए ये मोहब्बत, यीशु मसीह की मोहब्बत मेरे अजीजों खास है। और उसने यही कहा है कि हम भी मोहब्बत करें। नंबर 4, यीशु मसीह ने सलीब पर जब हम उसे कीलों से जड़ा हुआ देखते हैं तो हमें नजर आता है कि उसने फतह पाई है। क्या पाई है? फतेह पाई है। कितनी चीजों पर फतेह पाई है? बेला ने आज ही बताया, 3 चीजों पर। किस किस पर? उसने इब्लीस पर फतह पाई, उसने गुनाह पर फतह पाई और उसने मौत पर फतह पाई। मैं चाहता हूं आप एक स्टोरी मेरे साथ निकालें। पैदाइश 3 बाब उसकी 14वीं से 15वीं आयत तक हम इसको देखेंगे। पैदाइश यानी उत्पत्ति 3 अध्याय 14वीं से 15वीं आयत तक। और यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पहले माँ बाप आदम और हवा बागे अदन से निकाले गए थे, और उसके निकाले जाने की वजह क्या थी? नाफरमानी की वजह से, गुनाह की वजह से उन्हें बागे अदन से
निकाल दिया गया। उसको बहकाने वाला कौन था? शैतान था। तो आप ये देखें, हमारे माँ बाप, आज जो दुनिया में दुख है ना, तकलीफें हैं, उसकी वजह यह है कि हमारे माँ बाप बहकाए गए। ठीक है, आदम, पहला आदम बहकाया गया, और बहकाने वाला था कौन? शैतान था। लेकिन यीशु मसीह को कहते हैं दूसरा आदम। कितने लोग जानते हैं उसको दूसरा आदम कहा जाता है? पहला आदम इब्लीस की वजह से वो बहकाया गया। पहले हवा बहकाई गई, फिर आदम भी बहकाया गया, और वो दोनों एक ही थे खुदावंद की निगाह में। पहला आदम गुनाह के इब्लीस के जरिए से सांप की शक्ल में जब वो बनकर आया तो वो बहकाया गया। लेकिन दूसरा आदम जो है वो शैतान से बहकाया नहीं गया। ये कहां पर हम पढ़ते हैं? मत्ती 4 बाब में 3 दफा इब्लीस ने उसको बहकाने की कोशिश की, लेकिन यीशु उसके बहकावे में ना आया। तो किसको शिकस्त हुई? शैतान को शिकस्त हुई। और दूसरी शिकस्त जो है उस शैतान को इसलिए भी हुई क्योंकि ये हवाला भी हम पढ़ते हैं। फिर यहोवा परमेश्वर ने सप ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਰਾਪੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਾਰ ਤੁਰੇਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਖਾਇਆ ਕਰੇਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੀਵੀਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਤੇ ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਫੇਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਅੱਡੀ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰੇਗਾ। आमीन। तो यहां पर यह वादा प्रभु यीशु मसीह के साथ था कि औरत की नस्ल में से, औरत की नस्ल कौन है? औरत की नस्ल में से प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो कुमारी से पैदा हुआ है। ये जो नस्ल कहलाती है ना, ये मर्द की, दुनिया में जो नस्ल है वो मर्द से चलती है, लेकिन अगर कोई औरत की नस्ल से है तो वो सिर्फ एक है, यीशु मसीह। और आज जितने भी यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं वो उसी की नस्ल से गिने जाते हैं। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि इब्लीस को ये सजा मिली थी कि मैं तेरे और औरत की नस्ल के दरमियान, यानी तुम्हारे और इब्लीस के दरमियान मैं अदावत डालूंगा। कलीसिया और इब्लीस के दरमियान मैं अदावत डालूंगा। लेकिन वो जो मसीहा है, वो जो औरत की नस्ल में से है, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को काटेगा। और सलीब पर जब हम यीशु मसीह को देखते हैं तो हमें ये नबूवत पूरी होती हुई नजर आती है, क्योंकि यीशु की एड़ी में कील 6 इंच जो मोटे और बड़े कील थे वो यीशु की एड़ी में डाला गया। तो इसका मतलब है कि इब्लीस ने वो कील बनकर उसकी एड़ी को काटा। हालेलुया। और आप ये देखें, जो सलीब थी इसको कहा जाता था कि ये लानती है, और इब्लीस यहां पर क्या समझा गया है? लानती है। तो वो कील जब यीशु मसीह के पांव में से होता हुआ गया है तो किसको जाके लगा है? सलीब के ऊपर जाके लगा है, शैतान के ऊपर जाकर लगा है, और इब्लीस का सर भी कुचला गया है। सलीब पर हमें नजर आता है कि सिर्फ यीशु मसीह को चोट नहीं लगी, यीशु मसीह की एड़ी को नहीं काटा गया, बल्कि इब्लीस के सर को भी कुचला गया है। और यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठकर इस बात को साबित किया। इब्लीस पर फतह पाई और गुनाह पर फतह पाई। गुनाह पर कैसे यीशु मसीह ने फतह पाई है? क्योंकि आदम बहका और उसने क्या किया? गुनाह किया। लेकिन यीशु मसीह ना बहका और ना उसने गुनाह किया। उसकी जिंदगी बेगुनाह थी, वो बेऐब बर्रा था खुदा का, जो अकेला ही था इस सारी धरती पर, जिसकी जिंदगी में कभी भी कोई गुनाह नहीं आया। तो उसने किस पर फतह पाली? फिर गुनाह पर फतह पाई। और तीसरे नंबर पर उसने किस पर फतह पाई? बताइए। मौत पर। कैसे मौत पर फतह पाई? आगे आजे यीशु कब्रां चो उठ के, वो मुर्दों में से जब जी उठा है
तो मौत को भी शिकस्त हो गई। इससे पहले मौत को कभी किसी ने शिकस्त नहीं दी थी, हमेशा मौत ही जीतती थी। सिकंदर आजम बड़ा ताकतवर था, लेकिन उस पर भी किसने फतह पाई? मौत ने। लेकिन एक ही है तेरा और मेरा मसीहा यीशु मसीह, जिसने मौत पर भी फतह पाई है। इसलिए मेरे अजीजों वो सलीब पर है कि उसने शैतान पर, उसने गुनाह पर और उसने मौत पर फतह पाई है। 5वें नंबर पर जब हम देखते हैं यीशु सलीब के ऊपर क्यों है? खुदा की और बाप की सुलह करवाने के लिए। हालेलुया। जब आप सलीब का निशान देखते हैं ना, एक ऐसे जाता है, इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल, और इस एंगल को क्या बोलते हैं जोश बताओ? वर्टिकल, और इसको हॉरिजेंटल। यस, इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल और इस एंगल को बोलते हैं वर्टिकल। तो आप ये देखें कि खुदा ने, नीचे कौन है? हम, और ऊपर कौन है? खुदा। तो उसने खुदा की और इंसान की, खुदा की और इंसान की सुलह करवाई। और जब हम ऐसे देखते हैं तो हमारे बगल में आए दाएं कौन है? हमारे बहन भाई हैं, दोस्त हैं, इनके दरमियान भी उसने सुलह करवाई है। तो यीशु की सलीब हमें बताती है कि ये शख्स, इसने मेरी और खुदा की सुलह करवाई है, इसने मेरी और मेरे भाई की, मेरी बहन की सुलह करवाई है। ये सलीब का पैगाम हमें बताता है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदामंद यीशु मसीह, हम पढ़ेंगे मत्ती की अंजील 27 बाब उसकी 50 से 54 आयत, 50 से 54 आयत, 27 बाब मत्ती। याद रखें कि यीशु मसीह का हर स्टेप, उसका हर काम एक मकसद के तहत था। हम इसको पढ़ेंगे। मत्ती 27 बाब 50 से 54 आयत। ਯਿਸੂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਵੇਖੋ ਹੈਕਲ ਦਾ ਪਰਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤਾਈਂ ਪਾਟ ਕੇ ਦੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਕੰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਤਿੜਕ ਗਏ, ਅਤੇ ਕਬਰਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। और 54 ਆਇਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਅਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭੁਚਾਲ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਡਰੇ ਅਤੇ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। हालेलुया। आमीन। तो ये पहचान गए हैं यीशु मसीह को। तो मेरे अजीजों, आज जब आपको सारी बातें समझाई जा रही हैं, तो अगर हम आज भी ना समझे उसकी सलीब को, तो फिर हम बड़े बदबख्त लोग होंगे। और ये तब हमें एहसास होगा जब वो जलाल के तख्त पर बैठकर धरती का इंसाफ करने के लिए आएगा। तब लोग छाती पीटेंगे और कहेंगे, काश मैं थोड़ा सा वक्त यीशु को जानने के लिए लगा लेता। तो उसने हमारी और बाप की सुलह करवाई है मेरे अजीजों। 6 नंबर पर हम देखेंगे कि हमें जोश खुदावंद यीशु मसीह ने हमें बताया है कि सलीब की ताकत क्या है, खुदा की ताकत क्या है, सलीब की ताकत क्या है। इसको समझने के लिए हम खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर थे। हम पहला करंथियों पहले बाब की 18 आयत में देखते हैं, लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। ਸਲੀਬ ਦੀ ਕਥਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਮੂਰਖਤਾਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਭਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ परमेश्वर की सामर्थ है। आमीन। परमेश्वर की सामर्थ है उनके लिए जो बचाए जाएंगे। सलीब परमेश्वर की ताकत है मेरे अजीजों हमारे लिए। सलीब वैसे क्या बताती है हमें, क्या पैगाम देती है? सलीब क्या है? सलीब है दुख है, सलीब तकलीफ है, सलीब मौत है।
लेकिन ये तकलीफ और दुख और मौत असल में ये खुदा की ताकत बन जाती है मेरे अजीजों। यही यीशु, ये राज यीशु मसीह बताना चाहता था, इसलिए वो सलीब के ऊपर था। हालेलुया। मैं आपको बताता हूं, जब आप तकलीफ उठाते हैं तो इसका एक बहुत बड़ा राज है। तकलीफ हमें मजबूत बनाती है। आपको पता है, जो यहां पे कोई ऐसा है जो जिम जाता है, हाथ खड़ा करेगा। कोई नहीं जाता, कोई तकलीफ नहीं उठाना चाहता आज के टाइम में। जिम में आप ताकत लगाते हैं, जोर लगाते हैं और वो तकलीफ मिलती है जिस्म को, लेकिन वो तकलीफ सहते सहते आपके जिस्म जो हैं वो मजबूत हो जाते हैं। हालेलुया। तो तकलीफ, दुख जब हमें आते हैं ना जिंदगी में, हाय हाय करने की बजाय ना खुशी मनाया करें। तकलीफ खुशी के साथ कबूल करें, क्योंकि तकलीफों के बाद बरकत आती है। आप अकाब हैं, आप बाज हैं, उड़ने वाले बाज औकाब हैं। खुदावंद का कलाम कहता है, मैं तुम्हें औकाबों का सा जोर दूंगा, तुम बालों पर से उड़ोगे। तो एक शायर लिखता है, कहता है, तुंदी बादे मुखालिफ से आने वाले तूफान से ना घबरा ए अकाब, ये तो चलती हैं तुझे और ऊंचा उड़ाने के लिए। ये तूफान इसलिए आया है कि तुम हवा से भी बढ़कर ऊंचा उड़ो। तो याद रखे, जब भी तकलीफ आए, वो बदबख्त लोग हैं जो कहते हैं ओके मैं मुंडा मंगया सी, मेरे घर हो धी पई है ते प्रभु जा मैं हम तेनू नहीं मानता। बेवकूफ हैं, नादान हैं वो लोग। आपने कोई सुखना सुखी पूरी नहीं हुई और आपने प्रभु को छोड़ दिया। नहीं, आपने बीमारी के लिए, आप बीमार थे, कोई तकलीफ थी, आपने दुआ की, वो पूरी नहीं हो, प्रभु नहीं सुनता, मैं छाड़ दिता प्रभु ने। ऐसे बहुत सारे खुदा के खादम हैं। पौलुस रसूल जो हर जगह जाके शिफा देता था, उसको एक ऐसी तकलीफ थी जिसके लिए उसने 3 दफा दुआ की, लेकिन खुदावंद ने क्या जवाब दिया? मेरा फजल ही तेरे लिए काफी है। उसको शिफा नहीं मिली, लेकिन उसने प्रभु यीशु को नहीं छोड़ा। हालेलुया। मूसा सही से बोल नहीं पाता था, खुदावंद को कहता है, खुदावंद मैं तो बोल भी नहीं सही से पाता, तो लेकिन उसने फिर भी खुदा को नहीं छोड़ा और खुदा ने उसके साथ खड़ा कर दिया। तो इसलिए मेरे अजीजों, अपनी तकलीफों की वजह से खुदा को ना छोड़ दें। उसने तकलीफें इसलिए सही हैं ताकि एक मकसद था, ताकि हम सलीब की ताकत को जान सकें। और सलीब की ताकत पता है क्या है? रियल ताकत सलीब की रेजोरेक्शन। रेजोरेक्शन, यीशु का जी उठना मुर्दों में से। हालेलुया। सलीब का पैगाम हमें बताता है कि यीशु ने जब सलीबी मौत सही, तो वो जब कब्र के अंदर था तो कब्र उसको अपने कब्जे में रख ना पाई और वो तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। फतह है ये ताकत है सलीब की, ये दुख सहने की ताकत है। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं, शायद आप लोगों ने पहले सुनी भी है। एक चिड़िया जो हवा तूफान आया और तूफान उसे जो है वो एक डेजर्ट में, बियाबान में ले गया, और चिड़िया वहाँ पर जो है अब डेजर्ट में तूफान के अंदर फंस चुकी है। और अब तूफान गुजर भी गया, लेकिन वो तो इतना बड़ा डेजर्ट है कि उसको निकला नहीं जा रहा और वो कमज़ोर होती जा रही है। और अब वो कोस रही है, किसको? खुदा को, कि क्यों तूफान आया। वो कोस रही है, हाय मैं क्यों इस जगह पर आ गई। लेकिन उसने कभी शुक्रगुजारी नहीं की, उसने कभी खुदा से मदद नहीं मांगी कि खुदावन तू मुझे यहाँ से निकाल। एक दिन उसके जहन में ख्याल आता है कि मैं अब क्या करूँ, किससे मदद मांगूँ। तो खुदा की करनी ये होती है कि एक
डव, एक कबूतर वहां पर आ जाता है और कहता है चिड़िया तू इतनी कमजोर क्या हो गया तुझे, यहाँ पर क्यों फंसी हुई है। तो वो चिड़िया बताती है कि एक तूफान आया और वो मुझे ले गया, यहाँ ले आया, मुझे पता नहीं, और मैं अब कमज़ोर हो चुकी हूँ, अब तो मुझसे उड़ा भी नहीं जाता, और अब मेरे लिए कुड़ना और खुदा को बुरा भला कहना और अपने आप को बुरा भला कहना है, मेरे आगे कोई रास्ता नज़र नहीं आता। तो उसने कहा खैर ये तो मेरा दुख है, तू सुना किधर से आ रही है। कबूतर बताता है कि मैं खुदा के पास आसमान पर जा रहा हूँ। तो कहता है कि खुदा को बताना कि तूने मेरे साथ क्या किया है। चिड़िया कहती है कि खुदा को बताना तूने मेरे साथ क्या किया है और मैं कब तक यहाँ पर दुख उठाऊंगी। अब वो कबूतर आसमान पर जाता है, वहाँ उसे एक फरिश्ता मिलता है और वो फरिश्ते को पैगाम देता है कि चिड़िया मुझे बियाबान में मिली, सहरा में मिली और वो फंसी हुई है और वो ये कहती है। फरिश्ता उसे कहता है कि तू उसे बता कि तेरी किस्मत में लिखा है कि तू 10 साल तक इस बियाबान के अंदर ऐसे ही सफ़र करेगी, ऐसे ही तकलीफ में रहेगी। तो कबूतर उसे कहता है कि अगर मैंने उसे जाके बताया कि 10 साल, पता नहीं 10 साल उसकी ज़िंदगी है कि नहीं, वो तो वहीं पे मर जाएगी, तो मैं क्या कहूँ, अब ये ठीक नहीं मुझे लग रहा। उसने कहा अच्छा, आपने अच्छा सवाल पूछा है, उससे जाके कहना अब जो कुछ लिखा है वो तो मैं बदलने से रहा, ठीक है, फरिश्ता हूँ, मैं बदलने से रहा। तो उससे कहना कि जब भी तकलीफ आए तो कहना खुदावंद तेरा शुक्र है। फरिश्ता उसे राज बता देता है कि तू तकलीफ जब भी आए तो कहना खुदावंद इस तकलीफ के लिए, इस दिन के लिए तेरा शुक्र है। पैगाम लेकर वो जो है वो चला जाता है कबूतर और कहता है मैंने ये पैगाम तेरे लिए सुना है कि जब भी तुम्हें अब तकलीफ आए, तू 10 साल तक इस सिचुएशन में रहेगी और जब भी आए तो वो फरिश्ते ने कहा है तू शुक्र करना खुदा का। अब जनाब वो जो कबूतर है वो चला जाता है और चिड़िया, उसके पास और कोई चांस नहीं, उसने शुक्र अदा करना शुरू कर दिया। खुदावन तेरा शुक्र है, जब भी भूख लगी है, तकलीफ हुई है, खुदावन तेरा शुक्र है। उड़ नहीं सकती, थोड़ी उड़ी, जुर्रत की, गिर गई, फिर कहा खुदावन तेरा शुक्र है। और मेरे अजीजों अगले ही दिन बादल आ जाते हैं, बारिश होती है और सहरा के अंदर फूल पौधे उगना शुरू कर देते हैं, चिड़िया को खाना मिलना शुरू हो जाता है। और 2-3 दिनों के अंदर ही हम देखते हैं 10 दिनों के अंदर चिड़िया के अंदर पूरी जान वापस आ जाती है, पर बाल उग जाते हैं और वो उड़कर उड़ारियां भरना शुरू कर देती हैं और कबूतर को जाके मिलती है कि ये क्या हुआ मेरे साथ। तो तूने तो कहा था कि मैं 10 साल तकलीफ में रहूंगी, लेकिन मैं तो 10 दिन के अंदर ठीक हो गई हूँ। यही पैगाम जाके कबूतर जो है वो फरिश्ते से पूछता है कि तूने तो मुझे झूठा ठहरा दिया, ये क्या हुआ, वो तो 10 दिन में बहाल हो गई और तूने मुझे 10 साल कहा था। तो फरिश्ते ने उसे कहा कि उसकी शुक्रगुजारी ने उसके 10 सालों को 10 दिनों में बदल दिया है। हालेलुया। आप ये देखें, इस्राएल से लेकर मिस्र से लेकर इस्राएल का जो सफर था वो सिर्फ 40 दिनों का था, लेकिन उनकी शिकायतों की वजह से वो सफर कितना हो गया, 40 साल का हो गया। तो मेरे अजीजों अगर हम शिकायत ना करें, अगर हम शुक्रगुजारी करें, अगर हम तकलीफों में भी खुदावंद को बुरा भला ना कहें अयूब की तरह, तो बरकत आपके पीछे चलकर आपके पास आएगी। हालेलुया। और 7वें नंबर पर खुदा हमें सिखाता है कि आपकी तकलीफों के पीछे एक मकसद है। मेरे बेटे, अगर तुम्हें कोई दुख आए, कोई तकलीफ आए, तो कभी मेरा साथ ना छोड़ना, मुझे याद करते रहना, शुक्रगुजारी करते रहना। तुम्हारे लिए हमेशा की जिंदगी है। यीशु की जिंदगी को देख, वो तकलीफ सहने के बाद मुर्दों में से जी उठा, और तू भी तकलीफ सहने के बाद जिंदगी पाएगा, बरकत पाएगा। हम एक हवाला पढ़ेंगे और उसके बाद आज की बाइबल स्टडी को हम
आज के कलाम को हम समाप्त करेंगे। पहला पतरस 2 बाब और उसकी 18वीं से 25वीं आयत, ये आखिरी हवाला हम पढ़ेंगे। दूसरा बाब 18 से 25। हे ਨੌਕਰੋ, ਪੂਰੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋ, ਨਿਰੇ ਭਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਲਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਰੜੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਝਾਲ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਧੀਰਜ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਕੇ ਧੀਰਜ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੱਦੇ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮਸੀਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਮਿਤ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੈੜ ਉੱਤੇ ਤੁਰੋ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਲ ਛਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ। ਉਹ ਗਾਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਗਾਲੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਪਾ ਕੇ ਦਬਕਾ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਯਥਾਰਥ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਸਾਡਿਆਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਭਈ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵੀਏ। ਉਸੇ ਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਓ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਅਜਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਗਾਹਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਆਏ ਹੋ। आमीन। मेरे अजीजों, याद रखें, अगर आप मसीह की खातर दुख सह रहे हैं ना, तो इसकी कीमत है, इसका अजर है आसमान पर। आज एक बड़ा खूबसूरत सुबह को आपको क्या मिला है, ब्रेकफास्ट मिला है, ये चर्च सजा हुआ मिला है, वंडरफुल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स मिले हैं, लेकिन याद रखें इसके पीछे एक कीमत चुकाई गई है। कुछ लोग सुबह 3 बजे उठे, कुछ 4 बजे उठे, कुछ 6 बजे उठे और उन्होंने प्रिपेयर किया, अपनी नींद को कुर्बान किया, तकलीफ सही ताकि खुशी बांटी जा सके। तो इसलिए याद रखें, आज जो तकलीफें भी आज खुदावंद यीशु के नाम में आप सह रहे हैं, उसका एक अजर आसमान पर हमारे लिए है। आप याद रखें, मसीह के लिए अगर हमें एक आंसू भी बहाना पड़ जाए तो खुदावंद उस आंसू को भी अपने आसमान पर, अपने मशकीज़े में वो बचा के रखता है, वो महफूज रखता है। मैं आपके लिए एक हवाला पढ़ूंगा और उसके बाद हम लोग दुआ करेंगे। लिखा है 1 करंथियों 15 बाब उसकी 58 आयत, बस ए मेरे अजीज भाइयों, साबित कदम और कायम रहो और खुदावंद के काम में हमेशा अफजाइश करते रहो, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावंद में बेफायदा नहीं है। हालेलुया। तो आप जो भी मेहनत कर रहे हैं खुदावंद के लिए, वो बेफायदा नहीं, उसका अजर है, और वो अजर खुदावंद हमें देगा जब वो आएगा अपने फरिश्तों के साथ। तो वो इंसाफ करेगा, वो फैसला करेगा, और वो कहता है मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए घर बनाता हूं। हम हमेशा की जिंदगी को पाएंगे। और याद रखें कि सदा का जीवन जो है, अगर यीशु मसीह जी उठा है तो हम मरने के बाद हम भी यीशु मसीह में जी उठेंगे, हम कभी नहीं मरेंगे। हम जितने विश्वासी हैं वो खुदावंद में हमेशा जीते रहेंगे। अगर आप जीना चाहते हैं, अगर आप हमेशा दुनिया में रहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप कभी ख़त्म ना हो, तो फिर विश्वास एक ऐसा बीज है जो आपके अंदर बोया गया तो वो उगेगा, वो फल लेकर आएगा, वो एक सदीपक जीवन बन जाएगा और जलाली बदनों के साथ हम अपने प्रभु के साथ मिलेंगे। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।